ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਮਸਨੂਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਮਸਨੂਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਚूँकि ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੰਦਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। تو سب تو پہلے وضو کرن دے واسطے نیت جڑی ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ عملاں دا دار و مدار نیتاں تے، تو ہر جو بھی نیکی دا کام اچھا کام کرن لگیا نیت دا خالص ہونا اللہ دے رضا واسطے ہونا ضروری ہے۔ تو نیت سب تو پہلے ہر نیک عمل دے واسطے کرنا فرض ہے۔ تو نیت کرن تو بعد سب تو پہلے اسی پڑھاں دے بسم اللہ، چونکہ حدیث پاک اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بسم اللہ ہی پڑھنا ثابت ہے، تو سانو بسم اللہ ہی کلی پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ بعض علماء آندے نے پڑھ لو کوئی حرج نہیں، لیکن صحیح جو طریقہ ہے بسم اللہ انہوں اختیار کرنا چاہیے۔ اس تو بعد اسی وضو جڑا ہن اپنا شروع کرن لگے ہیں۔ تو وضو دا طریقہ یہ کہ پہلے اپنے سجے اعضاء نوں دھویا جائے گا، پھر اپنے کھبے اعضاء نوں دھویا جائے گا، اور دھون دے اندر ایک بار بھی ایک اعضاء نوں بار بار ایک بار بھی دھوتا جا سکتا ہے، دو بار بھی دھوتا جا سکتا ہے، 3 بار، لیکن 3 تو زیادہ دھونا یہ حدیث تو ثابت نہیں، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 باری تو زیادہ کسی اعضاء نوں دھوے گا انہیں ظلم کیتا ہے، زیادتی کی، تو لہذا 3 باری جڑا دھوتا جا سکتا ہے، 1 باری 2 باری 3 باری۔ ہن طریقہ کار یہ کہ سب تو پہلے اسی اپنا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھونا ہے۔ تو ہاتھ دھونا کیونکہ سجا ہاتھ پہلے دھونا ہے، تو کھبے ہاتھ دے وچ اسی پانی لاواں گے برتن چوں، اور انہوں اس طریقے پا کے آپس میں ملاں دین کر کے، پھر اس تو بعد پھر اسی پانی لے، پھر انہوں پایا تے پھر اسی ملے، پھر انہوں دھوتا ہے، پھر ملے، پھر اس طریقے اسی سجے نال کھبے نوں دھوتا ہے، یعنی 3 باری اسی اپنا سجا ہاتھ دھونا ہے، 3 باری کھبا، اور انگلاں دا خلال بھی کرنا ہے۔ اس طریقے کر لو تاکہ درمیان دے اندر جو جگہ ہیں یہ بھی اچھی طرح تار ہو جاوے۔ انگلاں دا خلال جڑا ہے یہ ضروری کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے۔ ہاتھ دھون تو بعد سجا ہاتھ بھی دھو لیا، کھبا بھی دھو لیا، 1 بار دھو لو، 2 بار دھو لو، 3 بار دھو لو۔ اس تو بعد اسی اپنا کلی کرنی ہے۔ تو یہ واسطے کلی کرن دے واسطے جو طریقہ صحیح طریقہ ہے نا وہ یہ کہ منہ دے اندر بھی پانی پاؤ تے نال نک نوں بھی پانی لاؤ کٹھا، اینوں آندے نے وصل کرنا، یعنی ملا کے کرنا، یعنی منہ دے اندر بھی کلی کرن پانی پانا اور اس تو بعد اپنے نک چ پانی پانا، اینوں وصل آکھیا جاندا ہے۔ تے بعض وہ جو کہ آندے مشکل ہوندا ہے تو کل پہلے منہ چ پانی پا لیندے نے، پھر نک نوں پانی لا کے صاف کر لیندے نے، یہ البتہ جائز ہے، لیکن جو سنت طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ تسی اپنا جڑا ہے وصل کرو، یعنی منہ چ پانی تے نک نوں کٹھا پڑ لو۔ دا طریقہ کار ہے کہ پانی لو، اس طریقے کلی کرو، منہ چ لا لو اور اپنا نک صاف کرو، پھر دوسری باری لو، کلی کرو، کلی کر کے پانی منہ سٹ دو، نک نوں صاف کرو، پھر تیسری باری پھر پانی لینا ہے، کلی منہ چ پانی پانا ہے، نک نوں پانی لانا ہے، کلی کر کے پانی باہر سٹ دو، اور اس تو بعد نک نوں پانی لاؤ۔ تو یہ حلق تک پانی مل جانا اور نرم نتنے تک نک دے اندر پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت کے اندر یہ نہیں کیتا جا سکتا، باقی اوور آل یہ کرنا ضروری ہے۔ حلق تک پانی جاؤ، نک نوں اچھی طرح صاف کرو، یہ 3 باری کرنا ہے۔ اس تو بعد نک بھی ہو گیا، 3 باری صاف کر لیا، کلی بھی اسی کر لئیے، ترتیب دے نال اذان دھونا ہے۔ پھر اسی اپنا چہرہ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، پانی لو، اپنے ہاتھ تے پاؤ،
और अपने चेहरे को साफ करो। अपने चेहरे को अच्छी तरह मलना है। अगों वाल जितों ने इतों जिस वाल शुरू होंगे ने ये मत्था जिहड़ा है, और उस तो बाद ठोडी जिहड़ी है, एक कंन की लो तो दूसरे कंन की लो, ये इहदा अच्छी तरह धोना है। 3 बार इसे धोवांगे पानी के नाल। चंगी तरह अपने चेहरे को मल लो। 3 बार इन्हूं धो लिया। और दाढ़ी का उतला हिस्सा जिहड़ा है वो भी तकरीबन तार हो गया है। हुण अगर उतला हिस्सा तार हो गया, दाढ़ी हौली है तो उन्होंने पानी लवो, इस तरीके खलाल कर लो। अगर दाढ़ी भारी है तो पानी इस तरह लैके इस तरीके खलाल करो। ये दाढ़ी का खलाल भी जोड़ा है जरूरी करना चाहिए। तो दाढ़ी का खलाल हो गया। अपनी दाढ़ी को खलाल करने तो बाद हुण असी जिहड़ा अपने बाजू ने उन्होंने धोना है। तो बाजू धोने के वास्ते तरीकाकार ये वे कि पहले सज्जा बाजू चुन के धोना है और फिर खब्बा धोना है। तो ये वास्ते एक तो यह तरीकाकार है कि असी जिवें धोने इस तरीके पानी लिया, इस तरीके धो लिया। लेकिन जो हदीस के विच कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नत्थ के अंदर घुमाते सन, वो तरीका है वे कि इस तरीके करके ते बाजू ने करके धो लेना। एक बारी फिर इस तरीके करना, पानी इस तरीके घुमा देना, अच्छी तरह कूनी समेत जड़ियां ने इन्होंने धोना है। 3 बार ये काम करना है। सज्जा पासा यानी सज्जा बाजू पहले धो लिया, फिर खब्बा एवं पानी को हथ से इंज करके बांह से घुमा दो और इन्हें अच्छी तरह साफ करो। फिर पानी पाओ इस तरीके, फिर इन्हें घुमा दो इंज करके, और तीसरी मरतबा फिर पानी पाया घुमा दिता है। हुण बाजू जिहड़ा अच्छी तरह दोवें साफ हो गए ने। यह कूणियां कूणियां हिस्सा जिहड़ा खुश्क नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल दोवें बाजू अच्छी तरह धो लैने। कई होंगे ने वजू करते बाहवां धो के पहले इस तरीके उवें धो लेंदे ने, फिर पानी घुमाई 3 बार घुमाते हैं। 3 बार इधर घुमा लिया, फिर यह भी धोता जो है पहले, फिर इधर इन्हें घुमा देंगे ने, तो फिर सेकट इंज करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि 3 बार पहले धो चुके हैं, वो मसनून तरीका है, तो 6 बार हो जाएगा। और 7वीं बार तो इंज करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 3 बार धोना है और बाजू से पानी जिवें दस्सिया घुमाना है उवें धो लो, या जिवें तुहानूं आसानी है धो लो। लेकिन सुन्नत तरीका यह है कि एक कदे बाजू से घुमाया जाए। हुण उस तो बाद सिर का मसा करना है। सिर के मसे के अंदर एहतियात जरूरी है, क्योंकि बाद कंघी की होंगी है, वो आते हैं सिमन गोला ना हो, वाल खराब ना हो, वो बड़ी एहतियात करते हैं इस चीज़ में। तो तरीकाकार वे पानी लवो, एक हाथ दूसरे से पाया, इंज उंगलियां जड़ियां जोड़ लो, नाल ला लो। यह जितों मत्थे तो वाल थोड़े शुरू हो रहे हैं उत्थे ही रखो हाथ, इवें हाथ अपना पिछे नु लै जाओ और पिछल जाना है इस तरीके खुद्दी तक। यह जितों तक वाल जिहड़े ने थोड़े खत्म हो रहे हैं, इतों तक खुद्दी तक लैके जाना है। फिर इन्हों खोलना नहीं, उवें ही वापस अगली साइड से लैके आना है जितों शुरू किया थे, जिथे वाल खत्म हो रहे हैं मत्थे ते ना बंद। हाथ खोलने नहीं ने, उवें रखने ने। और इन्हों अच्छी तरीके जिवें तुहानूं मसा दस्सिया है, हाथ खोलने नहीं, इवें हाथ बंद पिछे लैके जाने, उवें बंद ही अगम लैके आने। फिर उस तो बाद दोबारा पानी लैन की कन्ना का मसा करने वास्ते जरूरत नहीं है पानी दोबारा हथ में लाने की, क्योंकि उंगलियां के अंदर पानी है, इन्ना ही काफ़ी है। तो इसका तरीकाकार यह कन्ना की सलवट बनी हुई है, ये मुताबिक तुसीं करना। एक तरीका भी तुसीं इस तरीके इंज भी अंदर नूं लिजा सकते जे, या तुसीं अंदरों करना जिथे सुराख ने उत्थों तुसीं इंज करके बाहर नूं जिवें जिवें कन्ना की सलवट है ना, उवें तुसीं बाहर नूं लिया सकते जे। ये क्योंकि हदीस के अंदर की वजाहत कोई नहीं कि तुसीं बाहरों अंदर में शुरू करो या अंदरों तुसीं बाहर में लैके आओ, ये तुसीं जिवें भी करोगे ठीक होगा। और उस तो बाद इस तरीके करना पिछों यही करते अंगूठे के नाल यही करना है, और कन्ना का मसा जो मुकम्मल हो जाएगा। फिर उस तो बाद हुण आपां पैर धोने ने। पैर धोने का तरीका यह कि सज्जे हाथ के नाल पानी पाओ, खब्बे दे नाल पैर नूं धोवो। खब्बे दे नाल पैर नूं धोना है, और उनका तरीका कार यह कि इस तरीके पानी पाया अच्छी तरह मलना,
एंडियां जड़ियां ने खुश्क नहीं रहनियां चाहिए, क्योंकि पिछे जोड़े टखने ने ना ये पिछे साइड आ थोड़ी जी अगे पिछे होंगी, तो इनू स्वाद साफ करना है ताकि पानी अच्छी तरह लग जाए। नबी पाक ने फरमाया वैलुल लिल नार, एडियां जड़ियां ने खुश्क रहती हुए तो जहन्नम की अग में जाएंगियां, लिहाजा इन्होंने अच्छी तरह एडियां ने साफ करना है। तो धोना है पैर को 3 बारी धोना है। यह जी छोटी खब्बे हाथ की छोटी छिंगली उंगली है ना, ये जोड़ा इस तरीके उंगलियां का इस साइड तो शुरू करना है, उंगली के विच खलाल करना है। खलाल हो गया, इन 3 बारी पैर को धो लिया गया अच्छी तरह। उस तो बाद खब्बा पैर धोना है, ये भी वही तरीका है। पानी पाओ, पैर में अच्छी तरह मलो, साफ करो। थले वाली सैड स्वार तो साफ करनी चाहिए, क्योंकि मैल वगैरह उत्थे लग जाती चलन की वजह से। उन्हें अच्छी तरह साफ करो, धो लवो और इस उंगली के नाल इधरों होना शुरू, उधरों इनू इतों इधरों शुरू कर देना। इन उंगलों का खलाल करना है अच्छी तरह नाल। खलाल हो गया, पैर जोड़ा अपना ये भी खब्बा भी धो गया 3 बारी अच्छे तरीके के नाल, ये भी साफ हो गया। लो जी, ये हुण अपना वुज़ू जिहड़ा है ये मुकम्मल हो गया। उस तो बाद दुआ पढ़नी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसकी फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत के नाल जन्नत के 8 दरवाजे उसदे वास्ते खोल दिंदा है, जिहड़ा बंदा इस दुआ नूं पढ़दा है। ते वुज़ू करन तो बाद आसमान की तरफ उंगली उठाना, इस तरीके निगाह इस तरीके बुलंद करना, ये किसी भी सही हदीस तो साबित नहीं है। बस तुसीं उवें कलमा जिहड़ा जिवें आम पढ़ी दो तरीके तुसीं दुआ पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, तुहाडा ये दुआ हो गई। तो एक तरीका जिहड़ा पिछे खुद्दी का मसा करते हैं, ये भी किसी हदीस तो साबित नहीं है। अलामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह ने बयान किया है, किसी भी सही हदीस तो गुद्दी का मसा जिहड़ा इस तरीके पिछों करते हैं, मसा सादा कर लगे, ये साबित नहीं है। और इस तरीके ये फजीलत सी वुज़ू दी कि जिहड़ा बंदा वुज़ू करता है, दुआ पढ़ता, अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंदे ने। ते फिर जिहड़ा बंदा 2 रकत नफल या सुन्नत पढ़ लैंदा वुज़ू करन तो बाद खुशू वुज़ू नाल सिदके दिल दे नाल, तो नबी पाक ने फरमाया वाजबत लहुल जन्नह, अल्लाह पाक उहदे ते जन्नत नूं वाजिब कर देंदे ने। यानी ये वुज़ू दी अच्छे तरीके सुन्नत के मुताबिक जिन्हें वुज़ू कीता है उन्होंने इस सवाब मिलेगा। बाकी किसी ने अपने मौलवी मगर ला के, अपने मुर्शिद अपने पीर मगर ला के वो तरीके से किया नहीं, सुन्नत के मुताबिक जिंदा वुज़ू मसनून वुज़ू सी उन्होंने अजर मिलेगा। और ये भी फजीलत है वुज़ू की कि जिथे जिथे पानी वुज़ू का लगे है, अखां ते, चेहरे ते, सादा मसा, कन्ना दा, बाहां ते, हत्थां ते, पैरां ते, तो फरमाया कि उथों तो गुनाह जिहड़े ने वो गिर जाते हैं वुज़ू के पानी के नाल। अल्लाह पाक को दुआ करने, अल्लाह पाक सानू सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।